Hello everyone and welcome to the channel. So guys, this session is going to be very special and very informative for you because in this session we'll be discussing the elimination approach for English comprehension passage. So guys, we're trying to help you out in your journey ahead, and this is one of the biggest issues that aspirants face in the exam while solving comprehension passages in the CSAT paper. They find it difficult to eliminate the option. So today I have come up with a very logical approach, very strategic approach to eliminate the wrong options and getting to the right answer, and we'll discuss a few passages from the 2023 paper itself, and I'll show you how to use this trick to improve your attempt in the upcoming exams if you're preparing for them. So let's begin with the session, guys. So today we'll be discussing, this is part of the tips and tricks to crack comprehension for your CSAT part, and today we will be discussing the one of the most important tricks, that is the elimination method. So we'll be coming to that, but first let's start with the fundamentals of reading comprehension in UPSC. Now, what is the psychology behind uh, what is the psychology behind the comprehension, not descriptive comprehension, but this is the reading comprehension part, right? So reading comprehension is basically the perception, it is making sense of and comprehension of written matters. So basically whenever you are reading a comprehension, so this is more about the perception, the making sense of the passage, the premises of the passage, and the comprehension of the written words or the written matters that are given in front of you. In more clear words, it is to cognize in all respects the information, the feelings, and the thoughts that are desired to be transmitted as they are without having caused any misunderstanding in its course. So when you are reading a passage, you should be able to infer the information that is provided by the author, the feelings that is conveyed through by the author through his words, and the thought process behind those feelings or those words. That has to be understood, something that we call reading between the lines, right? So that is why we call it reading comprehension. So reading comprehension requires effective utilization of your cognitive structure of the passage, cognitive hypothesis, which focuses more on the perceptive skills, memory, and the strategies required to perform mental operations when you are reading something. So I know these are heavy words, but to understand, you basically, so it's not just about reading the passage and getting to the right answer, and you'll be, the answer will show itself to you. You will be required to read and comprehend it thoroughly, what has been conveyed by the author, what has been intended by the author, the perceptive skills, something that we call cognitive skills, right? And the hypothesis that is that needs to be used, that needs to be put in place by the aspirants to crack the exam. So something that we need to focus upon is to read between the lines. If you understand it, I hope you do, कि reading between the lines का मतलब क्या होता है guys, कि जो बात explicitly mention नहीं है उसको समझ जाना. For example, I'll give you a simple example. अगर मैं कहता हूँ कि 1st January 2020 को the number of cases of COVID-19 was around 10,000 globally, ठीक है? But by 1st of February, the number had risen up to about 1 million. So this is the statistics that is given to you. So what do you infer from it? That in a very short span of time, obviously this is clear, this is an inference that in a very short span of time, the disease spread to many more people, right? This is understood. But what can be more inferred from the passage? The disease became an epidemic in a very short span of time, because that's huge number of patients in the world that puts it, that calls it a, that makes it a pandemic, right? Number one. Number two, it was quite a communicable disease because in that short span of time, it is, it is spreading to so many people. So that means it is, a very communicable disease, and people are going to get affected by it, in a very, we can say people all over the world are getting affected by it. And there are a lot of precautions that need to be put in place because the disease looks potentially hazardous. So इतनी सारी इंफॉर्मेशन जब आप वर्ड्स के पीछे से निकाल के लाते हो, तब आप समझते हो कि कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या है. सो टू रीड बिटवीन द लाइन. सेकंड, टू इन्फर एंड कोलेट इंफॉर्मेशन इन द पैसेज, कि पैसेज में जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको इन्फर कर पाना और उनको कोलेट कर पाना, ताकि आप पूरे पैसेज का कॉन्टेक्स्ट समझ पाओ, एंड टू बी एबल टू एलिमिनेट द इनकरेक्ट ऑप्शंस, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी जज्ड ऑन द आंसर दैट यू गिव, राइट? सो वो भी आपको एक स्ट्रैटेजी आनी चाहिए, और उसी स्ट्रैटेजी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड द एलिमिनेशन मेथड. अभी एलिमिनेशन मेथड क्या है गाइस,
let me read the theory to you, and then I'll give you the very simple understanding of this. The elimination method is a strategic MCQ solving technique that helps you to reach the correct answer. You are required to rule out the incorrect choices systematically. To leverage this technique, the first step is to understand the question and identify the key terms. जैसे मैं हमेशा आपको बताता रहा हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ा करो, आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उसी पर्सपेक्टिव में आपको फिर अपने पैसेज को पढ़ना होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड आइडेंटिफाई द की टर्म्स जो आपको वहां पे गाइड करेंगे कि वो क्या पूछ रहा है. इन्फ्रेंस पूछ रहा है, कंक्लूजन पूछ रहा है, अजम्पशन पूछ रहा है, या मैसेज पूछ रहा है, या कॉरोलरी पूछ रहा है, क्या पूछा है उसने क्वेश्चन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड दैट विल गाइड योर आंसर चॉइसेस. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ ऑल्सो गो थ्रू द गिवन ऑप्शंस एंड एनालाइज देम वन बाय वन. एक एक करके उनको एनालाइज करना है. कंसिडर द ऑप्शंस दैट अलाइन विद योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन. उन ऑप्शंस को मार्क करो जो आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज में अलाइन करती हैं. वैसा ही लगता है जब आप पढ़ रहे हो, उसी अकॉर्डिंग पे जो ऑप्शंस आपको दिखते हैं, वो हो सकता है एक या एक से ज़्यादा हों, बट उनमें से भी फिर हमें बेटर ऑप्शन चूज करना पड़ेगा. सो कंसिडर द ऑप्शंस दैट अलाइन विद योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन एंड एलिमिनेट द चॉइसेस दैट आर फैक्चुअली इनकरेक्ट और सीम इनकंसिस्टेंट विद द क्वेश्चन. कॉन्ट्रेरी टू द स्टेटमेंट है, फैक्चुअली इनकरेक्ट है, या लॉजिकली सेंस नहीं बनाते, उनको एलिमिनेट करते चलो. Now, if you have some knowledge of the topic, apply it to eliminate choices that conflict with what you know. और उन ऑप्शंस को भी एलिमिनेट करो जो आपको, अगर आपको टॉपिक के बारे में पता है तो उसके कॉन्ट्ररी हैं. तो ट्राई टू मेक एजुकेटेड गेसेस. एजुकेटेड गेसेस मतलब पढ़े लिखे समझदारी वाले, ये नहीं कि इररेशनल इलॉजिकल गेसेस. रैशनल गेसेस लगाओ बेस्ड ऑन योर नॉलेज ऑफ द टॉपिक. आफ्टर सिस्टमैटिकली नैरोइंग डाउन द ऑप्शंस, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स एंड सेलेक्ट द आंसर यू बिलीव इज मोस्ट लाइकली करेक्ट. अब इसको करने के लिए एक और ट्रिक है जो बहुत अच्छी है, दैट इज कॉल्ड टू एलिमिनेट एक्सट्रीम ऑप्शंस फर्स्ट. सबसे पहले क्या करो, आपके ऑप्शंस मैंने आपको अभी दिखाऊंगा गाइस, 2-3 पैसेजेस दिखाऊंगा 2023 में, ठीक है, और बहुत सारे हैं दिखाने को, बट मैंने सिर्फ 2-3 चूज किए ताकि आपको मैं इस वीडियो में समझा पाऊँ कि कैसे आपको ऑप्शंस मिलते हैं एग्जाम में और कैसे उनको एलिमिनेट करना होता है. राइट. सो what do I mean by eliminate extreme options first? In most of the passages, it has been observed that there are some extreme options provided to confuse the aspirants. Now, extreme options never fit the answer. ये याद रखना. Extreme options, they never fit the answer. So always look for extreme options in the passages and eliminate them immediately. कि सबसे पहले extreme options को देखा करो, अगर वो आपको मिलते हैं तो उनको आंख बंद करके शुरू में ही eliminate कर दो. अब वो कैसे पता चलेंगे extreme options से? Look for words like always, never, only, all, yeah, no other option, no other. So these words, they show that they're talking about something extreme. That is always, yeah, this is the only problem, yeah, this can never be solved, yeah, all of this can be solved by this. No, these are extreme options. So look for words like this, and there can be other words, and opt out those options from the get go. सो यू नीड टू रिमेंबर कि जो भी एक्सट्रीम ऑप्शन आपको मिलता है, किसी भी ऑप्शन में आपको ऑलवेज मिले, नेवर मिले, ओनली मिले, ऑल मिले, तो ये सारे वर्ड्स आपको समझाते हैं कि एक्सट्रीम ऑप्शन है और उसको शुरू में ही एलिमिनेट कर दिया करो. अब कैसे दिखते हैं एक्सट्रीम ऑप्शंस गाइस, मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ. दीज आर सम पैसेजेस फ्रॉम द ईयर 2023. आप देख लेना जाके गाइस, आपको गूगल पे मिल जाएंगे ये पैसेजेस और उनके यूं कहीं ऑप्शन मिल जाएंगे. ठीक है, ठीक है. सबसे पहले हमें क्या देखना था, व्हाट इज इम्प्लाइड बाय द पैसेज. तो लेट मी शो यू के एक्सट्रीम ऑप्शन कैसे दिखते हैं. बट एक बार पहले पैसेज पढ़ेंगे, फिर मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ. ठीक है. मोर देन हाफ ऑफ इंडियन वुमेन एंड ऑलमोस्ट अ क्वार्टर ऑफ इंडियन मैन ऑफ वर्किंग एज, जो वर्किंग एज के लगभग आधी विमेन है और लगभग 25% मैन है, दे सफर फ्रॉम एनीमिया. एनीमिया मतलब कमजोरी. अब ये आपको पता होना चाहिए. इतनी अंडरस्टैंडिंग, इतनी नॉलेज आपकी, इतना पढ़ा लिखा आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हो तो होना चाहिए. दे सफर फ्रॉम एनीमिया, वीकनेस. ठीक है. अकॉर्डिंग टू स्टडीज दे आर एनीवेयर फ्रॉम 5 to 15% लेस प्रोडक्टिव देन दे कुड बी. स्टडीज के हिसाब से वो कम से कम 5 से 15% कम प्रोडक्टिव होते हैं जितना वो हो सकते थे एज अ रिजल्ट देयर ऑफ एनीमिया की वजह से. इंडिया ऑल्सो हैज़ द लार्जेस्ट ट्यूबरकुलोसिस बर्डन. इंडिया में टीबी भी बहुत ज़्यादा है ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, मतलब इंडिया में वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा टीबी के केसेस हैं, कॉस्टिंग 170 मिलियन वर्क डेज टू द कंट्री एनुअली. और एक साल में 170 मिलियन वर्क डेज टीबी की वजह से, बीमारियों की वजह से लोगों के खराब हो जाते हैं. साल के मतलब पूरे देश के खराब हो जाते हैं. बट व्हाट इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज लॉस्ट प्रोडक्टिविटी नाउ इज लॉस्ट पोटेंशियल इन द फ्यूचर. कि आज की लॉस्ट प्रोडक्टिविटी है उसको हम आगे कंसिडर करें तो इट इज लॉस्ट पोटेंशियल, जो हम कर सकते थे जो नहीं कर पाए.
It is becoming increasingly clear that on many measures of cognitive ability, malnourished Indian children perform 2 to 3 times worse than their adequately nourished peers. के जो कमज़ोर बच्चे होते हैं वो अपने पीयर्स से 2 से 3 गुना पुअर परफॉर्म करते हैं, देर उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी 2 से 3 गुना खराब होती है एज कम्पेयर टू हेल्दी किड्स फॉर एन इकोनॉमी दैट विल बी मोर डिपेंडेंट ऑन हाईली स्किल्ड वर्कर्स। और एक ऐसी इकोनॉमी इंडिया जो है जो हाईली स्किल्ड वर्कर्स पे डिपेंड करने वाली है, दिस पोजेज अ सिग्निफिकेंट चैलेंज, अनीमिया पोजेज अ सिग्निफिकेंट चैलेंज टू the human capital of the country, ये कह रहा है वो, and it is one that really should be addressed given India's demographic outlook। और इंडिया का जो demographic dividend है, क्योंकि इंडिया has become the youngest population of the world right now, अगर आपको पता है तो we are the most populous country, we also have the youngest population in the world between the working age, between the median of 18 to 45, we have the highest number of people in the world, so that is why we need to work on the health of the youth of the country because it is affecting the human capital of the country। ये पर्सपेक्टिव है। अब ऑप्शन की तरफ देखते हैं गाइस। एजुकेशन सिस्टम मस्ट बी स्ट्रेंथन इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करना चाहिए। क्या यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम की बात हो रही है या हेल्थ की बात हो रही है? तो इसलिए हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं कि कोई रेलेवेंसी नहीं है पैसेज से। ये है लॉजिकल एलिमिनेशन। अब नेक्स्ट ऑप्शन, लार्ज स्केल एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज द नीड ऑफ द आवर। लार्ज स्केल एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, ये बात है, लेकिन मेन पर्पस यहाँ पे खाने और एनीमिक मतलब पुअर हेल्थ के ऊपर था, ना कि स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है, तो इसको भी हम छोड़ देते हैं। फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ ओनली स्किल्ड वर्कर्स नीड स्पेशल अटेंशन। ये देखो ये था एक्सट्रीम ऑप्शन जो मैं आपको बता रहा था। ओनली दिखा कि सिर्फ स्किल्ड वर्कर के खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। इन ऑप्शंस को शुरू से ही एलिमिनेट कर दिया करो, ये कभी सही आंसर नहीं हो सकता। ये था एक्सट्रीम ऑप्शन। और फोर्थ, फॉर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एज इन्वाइज्ड बाय अस, अटेंशन शुड बी पेड टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ द पीपल। बात यहाँ पे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की थी, ना कि उनके स्किल डेवलपमेंट की। स्किल डेवलपमेंट तो हमारी रिक्वायरमेंट है। सो द राइट आंसर वाज ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से हम अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करके चलते हैं कि जो मेरे पर्सपेक्टिव से सही, अंडरस्टैंडिंग से सही चल रहा है वो ऑप्शन कौन सा है और बाकी ऑप्शन में क्या गलतियां हैं वो एलिमिनेट करके आपको अपने आंसर पे पहुंचना होता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू सॉल्व सच पैसेजेस। और देखते हैं गाइस एक पैसेज देख के करके। अब इसमें क्या है, व्हाट इज द क्रूशियल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रूशियल मैसेज कन्वेड बाय द ऑथर। तो क्या मैसेज दे रहा है इस पैसेज में, अभी वो देखते हैं। द एमिशंस ह्यूमंस पुट इनटू द एटमॉस्फेयर, जो कार्बन एमिशंस की बात कर रहा है वो, तो the emissions humans put into the atmosphere now will affect the climate in the middle of the century and onwards। के जो आज हम कार्बन एमिशंस कर रहे हैं ना वो आज हमें इफेक्ट नहीं करेंगे, वो आगे मिडल ऑफ द सेंचुरी 2050 के आसपास जाके हमें इफेक्ट करेंगे और उसके बाद हमें उसके प्रभाव दिखेंगे। टेक्नोलॉजिकल चेंज मीनवाइल कुड मेक अ फ्यूचर ट्रांजिशन अवे फ्रॉम चीप फॉसिल फ्यूल्स और इट माइट नॉट। टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से हो सकता है कि हम फॉसिल फ्यूल से हम कोई दूसरे ऑप्शन चूज कर ले या ना भी कर पाए, leaving the world with a terrible choice between sharply reducing emissions at huge cost or suffering through the effects of unabated warming। कि भाई अब हमारे पास दो चॉइसेस बचे हैं, या तो शार्पली रिड्यूसिंग एमिशंस की वजह से जो हम टेरिबल चॉइस हमारे पास बची है, या तो उस पर खड़े रहे हम जो ह्यूज कॉस्ट पे बेसिस पे, या फिर हम ऐसे इफेक्ट्स को बर्दाश्त करें जो कि ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले हैं। बिजनेसेस दैट डू नॉट हेज अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ अनसर्टन आउटकम्स फेल। कि जो ऐसे बिजनेस होंगे, ठीक है, जो आगे फ्यूचर के लिए प्लान नहीं करेंगे वो फेल होंगे। द वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड सच रेकलेसनेस ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज पे ऐसी रेकलेसनेस, वो मतलब ऐसी केयरलेसनेस हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, मतलब वी कैन नॉट अफोर्ड इट, मतलब फ्यूचर में हमें ही प्रभाव पड़ने वाला है। तो क्या मैसेज दे रहा है, बिजनेसेस दैट कॉज एमिशंस मे नीड टू क्लोज डाउन और पे फॉर पॉल्यूशन इन द फ्यूचर। कि क्या बिजनेस को बंद होना पड़ेगा, उनको फ्यूचर में पॉल्यूशन के लिए पे करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कहीं नहीं कहा है पैसेज में। ये देखो एक्सट्रीम ऑप्शन, द ओनली सॉल्यूशन इज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट रिलेटेड टू द इश्यूज ऑफ क्लाइमेट चेंज। के सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है इसका, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं। थर्ड ऑप्शन गाइस, वेटिंग टू डील विद कार्बन एमिशंस अंटिल टेक्नोलॉजी इंप्रूव्स इज नॉट अ वाइज स्ट्रेटजी। यस, ये कह रहा है कि भाई कब टेक्नोलॉजी इंप्रूव्स हो उसकी वेट में बैठे रहना इज नॉट अ गुड स्ट्रेटजी। वी शुड स्टार्ट वर्किंग फॉर मिटिगेशन एंड स्टॉपिंग एमिशंस टुडे so that we can fight it tomorrow. So that is the right answer. और fourth देखते हैं, since future technological change is uncertain, new industries should be based on renewable energy sources। कि future technological change जो है वो uncertain है, इसलिए new industries जो है वो renewable energy sources पे ही based होनी चाहिए। नहीं,
वो कह रहा है वो आगे कॉस्टली भी पड़ेंगी, फिर बिजनेस प्रॉफिट कहाँ से कमाएगा? तो आई थिंक द राइट आंसर हेयर वाज ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से देखो एक्सट्रीम ऑप्शन मिलेंगे आपको हमेशा पैसेजेस में, उनको शुरू में ही एलिमिनेट कर दो, ठीक है, और अपने फिर अपने लॉजिकल अप्रोच से अपने बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट करके अपने सही आंसर पे पहुंचो। एक और पैसेजेस दिखाता हूँ गाइस, इसमें भी देखना आपको ऑप्शन में ही दिख जाएगा पहले से ही। द होम रेंज ऑफ एलिफेंट्स नीड्स टू बी अ वास्ट एरिया ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी। एलिफेंट्स आर द कीस्टोन स्पीशीज एंड दे बेनिफिट द बायोडाइवर्सिटी। रिच बायोडाइवर्सिटी कैन नॉट बी मेंटेन्ड इन द फॉरेस्ट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एलिफेंट्स। ये देखो ये एक्सट्रीम ऑप्शन होते हैं कि एलिफेंट्स की प्रेजेंस के बिना रिच बायोडाइवर्सिटी मेंटेन की ही नहीं जा सकती। रॉन्ग। एलिफेंट्स आर केपेबल ऑफ रीजनरेटिंग फॉरेस्ट विद स्पीशीज एज पर द रिक्वायरमेंट। देखो एक ऑप्शन आपको हमेशा एक्सट्रीम मिलेगा ही मिलेगा। तो गाइज ये ऑप्शन, ये पैसेज के लिए मैं आपको चॉइस देता हूँ। एक ऑप्शन मैंने आपके लिए एलिमिनेट कर दिया है। पैसेज पढ़िए और इस पैसेज का आंसर मुझे आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दीजिए और बताइए कि सही आंसर क्या है। लेट मी सी आप सही आंसर तक पहुंच पाते हो या नहीं पहुंच पाते हो। सो यू हैव टू फाइंड अ लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्रेंस फ्रॉम द पैसेज। तो आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो गाइज। तो गाइज अगर आपको कुछ अच्छे सोर्सेज भी फॉलो करने हैं, जैसे अगर आपको लग रहा है कि वोकेबलरी की आपको इंप्रूव करने की जरूरत है, तो जो बुक है वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। आप डेली एडिटोरियल रीडिंग ज़रूर कीजिए, उससे आपको अलग अलग टॉपिक्स के बारे में पता चलेगा। यू कैन रेफर टू द लाइव मिंट और द हिंदू, उनके एडिटोरियल ज़रूर पढ़े। ऑनलाइन आर्टिकल्स और एडिटोरियल जो बहुत इंपॉर्टेंट आपकी नॉलेज बेस को इंप्रूव करने के लिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन, मुझे लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे अच्छे तरीका है उनको प्रैक्टिस करने का, उसके बाहर शायद इतनी रेलिवेंस ना मिले आपको। तो PYQs आर द बेस्ट। और अगर आपको कोई सोर्स चाहिए प्रैक्टिस के लिए, प्रिपरेशन के लिए, तो यू हैव द एडुटैप कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। इस कोर्स के अंदर हम आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस दे रहे हैं रिकॉर्डेड ऑन डे 1 अलॉन्ग विद डाउनलोडेबल PDFs एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। फिर सेक्शनल टेस्ट हैं पूरी टेस्ट सीरीज में आपके, और फुल लेंथ टेस्ट हैं। वीकली लाइव डाउट सेशंस होते हैं यहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स के साथ, और लाइव रिवीजन क्लासेस भी होंगी आपको एग्जाम से पहले प्रिपेयर करने के लिए। सो द लिंक फॉर आवर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। गो चेक आउट द लिंक एंड गेट बेनिफिटेड, एंड देयर इज अ स्पेशल डिस्काउंट गोइंग ऑन एज वेल, सो गो get benefited from it. अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, you can always call us on this number, that is 8146207241 during the office hours, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. I'll repeat it. Our email ID is hello@edutap.co.in. You can also drop us your emails in this. So thank you so much once again, guys, and do share your answers in the comment section of the video. Keep on working hard, keep on giving your best. I wish you all the success in your endeavors ahead, and happy learning to all of you.